Aryan, can Good you hear morning, me? ma'am. Am I Good audible? morning. Yes, you're audible. So, Aryan, before we begin, tell me about yourself. Introduce yourself a little. Ma'am, I'm Aryan Singh, hailing from Agra, Uttar Pradesh. I'm a graduate civil engineer, right now working as a business development executive in a local firm in Agra. Simultaneously, I'm preparing for some competitive exams and cleared some of them. Apart from them, regularly giving SSBs mainly are oriented towards the direct entries. Regularly giving SSB के तुम्हारा कोई प्रोफेशन थोड़ी है. Yeah, अच्छे ma'am. से इंट्रोड्यूस करो. Yeah, ma'am, right now I'm working as a business development executive in Agra after being graduated from engineering in तो तुमने 2023. कोर सेक्टर में जॉब क्यों नहीं लिया? Why are you working in sales after doing civil engineering? Yeah, ma'am. Actually, after completion in the final year, not many companies were offering tech roles at that time. And I was from a civil background. A dearth of jobs were there at that time. So I took the decision तुमने of बाद at में least. switch क्यों नहीं किया? And have you cleared any written exam of the forces? Ma'am, I have cleared FCAT and CGCAT, that is for Coast Guard. CDS, I haven't cleared. And which other competitive exams did you clear? Ma'am, I am a GATE aspirant. I have cleared GATE 2 times, and GATE is GATE gives a route of higher education as well as for pursuing a job in PSUs. So I'm still giving it this year. I'll give it to get a rank improvement and engineering services. I'm giving all the defense exams. Apart from that, SSC exams, railway exams for engineering posts. Okay, Aryan. So, Aryan, when you're going to your SSB, don't say so much about all the other competitive exams that you're giving. Why is it that you want to join the armed forces? My father is an MES, so it's a subsidiary branch that provides infrastructure to military. So, being in close vicinity from the childhood, I have seen the defense officers in his office wear uniform that instill patriotic fervor. Apart from that, I have a graduate degree in civil engineering that offers a field job, and defense also, like Army, Navy, Okay, Air Force Aryan, is also a according to field job. you, why should you be recommended? And tell me your strengths and weaknesses, then we'll begin. Ma'am, over the years, I have seasoned myself with all the officer-like qualities, and I'm physically fit, and I have a robust experience in corporate and good communication skills, and I'm not a newbie. After gaining experience, I'm giving the SSBs after having a job नहीं experience. आर्यन, Apart. खुद को ज्यादा प्रूव करने की कोशिश मत करो. एक ऑनेस्ट मैनर में बोलो कि तुम्हारी कोर क्वालिटीज क्या है. When we say that I have worked on all the officer like qualities, all the officer like qualities तो शायद सारे officers में भी नहीं होता होगा at all Yes, times. ma'am. Yes, So ma'am. Aryan, only tell me your core qualities in a basic manner. Don't look too coached, yeah, too cleaned up. So what are the core or the important qualities that you're having according to you, according to which Aryan, you think that you deserve recommendation? Ma'am, I am perseverant. I am adaptable, and I'm determined. These qualities come out of my repeated attempts being a repeater, and तुम क्यों prove कर रहे हो? Normally बोलो ना. ma'am, I love making new friends, and I am resilient towards my goal, and I If am. you're resilient towards your goal, तो CDS क्यों नहीं clear किया तुमने? Yes, ma'am. Just CDS is left. Apart from that, all exams of defense are cleared. नहीं, Because of. don't घुमाओ the answer. You tell that I gave my best in CDS, but because of XYZ, I missed out by some marks or something. देखो Aryan, if I'm asking why can't you run, तो why are you telling me, so what ma'am, I can do shooting, I can do singing. I'm Yes, asking ma'am. the question, why can't you run? You answer, why can't you run, Aryan? Yes, ma'am. Hmm. So why? Uh, Ma'am, because I was not good in general awareness, that is my weakness. Surface level knowledge of GK was the main reason I couldn't clear CDS. And how did you improve upon that?
क्योंकि you are Right now, resilient, Aryan. pardon, ma'am. Because you're resilient. तो तुमने क्यों नहीं improve किया? Ma'am, I'm currently got a subscription of newspaper, e-newspaper of Times of India. So I'm reading it daily and watching some videos on YouTube as well to So improve Aryan, current affairs. according to me, the strengths or why you should get recommended me, you should tell Aryan and that you always give your best in everything. So whatever situation you are given, whatever resources you are given, you always try to make the best out of it through that. Second weakness, Aryan, or second reason why you should be recommended, Aryan, you should tell that you are always willing to improve. So whenever you find your faults or someone gives you any feedback, you always Yes, work ma'am. to improve. So you say that I am a progressive person, I am a learner, and then you can say that I am adaptable. I think तुम्हारा intelligence भी काफी अच्छा होगा. So because I have not read your tests until now, तो तुम्हारा intelligence भी काफी अच्छा होगा. तो Aryan, these are the reasons why you should get recommended. Okay, ma'am. Got it. थोड़ा ना आर्यन एक चीज ध्यान रखो कि अपने आप को नॉर्मल दिखाओ. बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट कर कर थोड़ा शो, जितना ज्यादा शो करने की कोशिश करते हैं हम लोग आर्यन, उतनी कम हमारी ट्रेनेबिलिटी हो जाती है. तो डोंट डू दैट. ठीक है. अब जब तुम स्टोरी लिख रहे हो, सो कुणाल was interested to convert कच्चा houses to पक्का houses in rural area under the जन आवास योजना. पिक्चर को देखकर तो वो कॉर्पोरेट का पिक्चर लग रहा है. एंड देन यू आर राइटिंग कि चलो वो कच्चा हाउस को पक्का हाउस में कन्वर्ट कर रहा है. पिक्चर में एक सीरियस डिस्कशन भी था, 3 कैरेक्टर्स भी थे. तुमने किसी को इंक्लूड ही नहीं किया, तुमने सिर्फ अपने हीरो को ही इंक्लूड किया. ही इज मीटिंग चीफ इंजीनियर. चलो वो जो पिक्चर में टेंशन है, तुम चीफ इंजीनियर से मिल रहे हो, टू किस गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स, एंड he is making a makeshift temporary house for the residents of कच्चा हाउस. जब भी ये सब चीजें बताओ तो डिटेल्स ऐड करो कि 2 months में किया, 3 months में किया. वहां के लोगों को कन्विंस कैसे किया आर्यन, वो भी तुमने नहीं बताया अभी. Then he ensured the construction materials were fulfilling safety standards. ये भी ठीक है. थोड़ा यहाँ टीम वर्क ऐड करो कि वो अपनी टीम को कैसे टास्क डिलीगेट कर रहा है एंड ऑल, है ना. जो स्टोरी Yes, है ma'am. वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इमोशंस भी ऐड करो कि वो जो विलेजर्स थे वो खुश थे. उनको कैसे देखो तुम इस तरीके से, इवन दो यू आर ट्राइंग टू ऐड अ सोशल थीम, यू डोंट राइट योर स्टोरी इन दिस मैनर कि वो सिर्फ Yes, ma'am. अपने से चीजें कर रहा है एंड अपने लिए एंड तक कर रहा है. क्योंकि तुम विलेजर्स को यहाँ डेवलप करा रहे हो, तो यहाँ पर एंड में कुछ विलेजर्स के लिए लिखो कि दे वर हैप्पी और दे फाउंड पीस इन व्हाटएवर एक्सरसाइज हैड कम. ठीक है. Yes, ma'am. Try to add a little bit of emotions also. और बहुत fast actions लिखने की जगह normally लिखो चीजों को with adding details. ठीक है. Ma'am, how many actions are How many actions को count मत करो. अरे जो भी तुम्हारे हीरो का गोल है तुम उसको fulfill करो, लेकिन while fulfilling the goals you tell the emotions, thoughts and actions of the hero. जैसे यहाँ पर थोड़ा add कर दो कि he wanted to give them the best quality life, या ऐसे कर कर कुछ ऐड कर दो, या तो इमोशन या थॉट, एंड देन यू राइट द एक्शंस. बट व्हेन यू आर राइटिंग द एक्शंस यू आल्सो ट्राई टू साइमल्टेनियसली वर्क विद अदर्स अ लिटिल मोर. ठीक है. yes, ma'am. हाँ, अपने Form the वीकनेस, team, divided work among the team. हाँ, डेलीगेट क्या क्या किया वो भी थोड़ा बता सकते हो. अपने वीकनेसेस में तुम थोड़ा स्टबर्ननेस भी बता सकते हो. अपने स्ट्रेंथ्स में ट्रस्टवर्दी होना ऐड कर सकते हो, एम्बिशियस होना भी ऐड कर सकते हो तुम. Yes, ma'am. Somewhere I think from inside you might not be very confident. तुम दिखाओगे a lot of confidence, but अंदर से Yes, नहीं. ma'am. कम्युनिकेशन स्किल्स तुमने अपने स्ट्रेंथ में बोला आर्यन, लेकिन जब तुम बोल रहे थे तो शुरू में यू वर गेटिंग अ लिटिल नर्वस. तो अगर वो चीजें होती हैं तो हमको फिर उसको अपने स्ट्रेंथ में नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. Sure, ma'am. फिर सेकंड पिक्चर, जैसे यहाँ पर ही वॉज गिवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. शुरू फर्स्ट के स्टोरी में भी ही वॉज इंटरेस्टेड विद समथिंग, नाउ अगेन यू हैव बीन गिवन समथिंग. तो ट्राई शोइंग इनिशिएटिव फ्रॉम योर हीरो साइड आर्यन, नॉट ओनली कि समवन इज कमिंग एंड गिविंग यू समथिंग. क्योंकि फर्स्ट थिंग, जब कोई और तुम्हें बार बार काम करने को बोल रहा होता है तो वो उनका इनिशिएटिव होता है, तुम्हारा नहीं. एंड इफ आई हैव आस्क्ड यू टू डू समथिंग आर्यन, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विथ यू दैन टू डू इट. तो इंटरेस्टेड वाला तो फिर भी अच्छा लग रहा था, बट ही वॉज गिवन नहीं.
of creating Android app, but Android app for what? What Android app does he want to create or does he need to create? उसका पर्पस क्या है? जब तुम अपने हीरो और हीरो के गोल को बता रहे होते हो तो क्लियरली व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये चीजों को स्पेसिफाई किया करो आर्यन, ठीक है? ही इज मेकिंग हिज टीम, उसने सोचा भी नहीं कि क्यों ऐप बनाना है। और डिवाइडेड में डीई कब से होने लगा? एंड फिर तुम लिख रहे हो टैकल फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर व्हील्स, ही वुड वर्क बैक एंड। चलो ये तो अच्छा है, टू गाइडेंस फ्रॉम मेंटोर्स, फर्स्ट में भी बस याद कर लिया है। एज द मेन गेट वाज लॉक्ड ही आस्क्ड इज इट प्रैक्टिकल आर्यन, तुम्हें हम अपने घर बुलाए और हम बोले मेरा मेन डोर लॉक्ड है, खिड़की से आ जाओ? डज इट साउंड लॉजिकल? No, ma'am. And why would you ask a girl to do that? तुम अपने दरवाजे को ठीक कराओ. So give a different goal. It could be a goal of giving someone surprise or something. तो तुम दोनों ने प्लान किया है, तुमने स्टेयर्स लगा दिया। देखो काफी घरों में क्या होता है ना कि खिड़की के पीछे इधर एक बैक बालकनी भी होती है, तो यू कैन इवन कनेक्ट समथिंग टू दैट बैक बालकनी एज वेल, ठीक है? बट दिस आइडिया इज ओके बट नॉट वेरी गुड। Okay, ma'am. So does this theme go with this story, ma'am? No, Aryan, मतलब it will be okay, but I won't say that it is very good or matching the picture. ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया तो ये डाल दिया। तो Ma'am, so what can be the theme like? तुम्हें बताया तो बैक they बालकनी both are meeting. सरप्राइज से कनेक्ट कर दो, बालकनी के पीछे कोई प्रॉब्लम है ये सब चीजों से क्रिएट कर दो। कितने लोगों का घर नहीं देखा है तुमने ऐसे घर, यहाँ बालकनी होती है, इधर खिड़की और इधर एक दरवाजा होता है। जो Yes, ma'am. हाउसेज होते हैं उसमें तो ऐसे ही और होता है। अपार्टमेंट्स में भी क्या होता है कि जहाँ दो बिल्डिंग्स कनेक्ट होती है, यहाँ इन घरों में बैक बालकनी होता है आर्यन। फिर Yes, ma'am. लैडर लगाकर कुछ स्पेसिफाई करो, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए खिड़की से मतलब खिड़की से आने कह रहा है लैडर लगाकर, डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। The girl who is entering the window is also barefoot, Aryan. So when someone barefoot is entering your house, तो आइडियली हमारे ही घर का होता है ना, तुम्हारी बहन या तुम्हारे आसपास की रहने वाली कोई हो सकती है, तो इट्स नॉट वेरी गुड। अगर तुम फ्रेशर होते तो हम तुम्हें कहते कि हाँ ये ठीक है, बट तुम्हारे इतने अटेम्प्ट्स भी हो गए हैं। Yes, ma'am. थर्ड पिक्चर तुम देखोगे, देर आर थ्री कैरेक्टर्स हु आर देयर, शोभित इज नॉट दी ओनली वन। यहाँ पर थ्री कैरेक्टर्स है, यहाँ पर एक्सीडेंट है। तो ये जो थ्री कैरेक्टर्स है इसमें दो तुम्हारे रिसोर्सेज है। जैसे जीटीओ ग्राउंड में हर स्ट्रक्चर तुम्हारा रिसोर्स होता है, हर सपोर्ट मटेरियल तुम्हारा रिसोर्स होता है, वैसे पिक्चर के एलिमेंट्स भी क्या होते हैं आर्यन? रिसोर्स होते हैं, ठीक है? सो यू हैव टू ट्राई टू इंक्लूड दी रिसोर्सेज ऑल्सो, ठीक है? तो यहाँ पर लिखो कि, और हर स्टोरी में तुम खुद 70% मार्क्स लाते हो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर क्यों डाल रहे हो? हीरो को प्रोमिनेंट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को हटाकर आईआईटीज डालते रहे हर समय। तुमको लिखने का मन है फ्रॉम अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट लिख दो, या फिर यू कैन शो योर हीरो एज इम्पोर्टेंट इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, एक तो इस पिक्चर में जो कैरेक्टर है वो थोड़ा यंग लग रहा है, तो तुम इस तरीके से शो कर सकते हो कि शोभित, लेट्स से 20, a final year BTech civil engineering student, was coming with two of his friends after working hard for XYZ project or after playing football. ऐसे कर कर you can add some of your things, या तुम अपने फ्रेंड्स को कोई हेल्प करने के लिए लेकर गए थे, कुछ भी, यू एड समथिंग हियर। बार बार ऐसे आईआईटीज नहीं डालते रहो, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू remember one thing, that your psyche is going to reflect you, Aryan, ठीक है? तो तुम पिक्चर्स में एक तो खुद को ही डालो, जैसे तुम अपने कॉलेज में थे तो उधर ही से लिखो। कॉलेज में कुछ तो करते होगे ना एक्स्ट्रा, ऐसे लिख दो, फाइनल ईयर स्टूडेंट was coming home late in evening with two of his friends because of a skit पार्टिसिपेशन और समथिंग। तो जो जो तुमने लाइफ में किया है, या वो ट्रेकिंग के लिए जा रहे थे, जो भी किया है, यू टेल दोस थिंग्स, ठीक है? सो टोंगा एंड कार एक्सीडेंट, थोड़ा इसके बारे में और बता दो, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा, मे बी 4-5 वर्ड्स में। वन पर्सन इज लाइंग अनकॉन्शियस। देखो पिक्चर में दो प्रॉब्लम्स हो गया है, कार भी हिट हुआ है, टोंगा भी हिट हुआ है, यहाँ पर टोंगा भी है, कार भी है और हॉर्स भी है। सो डोंट थिंक ऑफ ओनली वन पर्सन, तीन लोग हैं, टास्क डेलीगेट करो। एक को बोलो कि टोंगा ड्राइवर के पास जाने, एक को एम्बुलेंस बुलाने या गाड़ी रोकने, या अगेन पर्सन के पास जाने, जो भी तुम्हें ज्यादा सेंसिबल लगे।
एंड थर्ड केस में यहाँ पर भी जो कार है उसमें भी पर्सन को देखो, अगर तुम ये एज्यूम नहीं कर रहे हो कि कार खराब हुई है तो कार इज ऑल्सो वन ऑफ योर रिसोर्सेस। फिर यहाँ कॉन्शियसनेस की भी स्पेलिंग गलती लिखी है तुमने, रिट्रीव यस मैम। स्पेलिंग गलती है। जब तुम्हें कोई कोई वर्ड्स के स्पेलिंग्स नहीं आते हैं तो यूज इजी वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर तुम बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करोगे आर्यन तो यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। एंड लास्ट में थोड़ा और लिखना था, व्हाई विल यू नरेट दिस इंसिडेंट टू योर फ्रेंड्स एंड फील सेटिस्फाइड। तुमको अपने फ्रेंड्स से अप्रिसिएशन थोड़ी चाहिए। देखो अगर कोई स्टोरी में या किसी इंसिडेंट में एक्सीडेंट हो रहा है आर्यन, तो हम लोगों का एंड टर्म गोल क्या होना चाहिए, दोस पीपल वर फाइन। अगर तुम उनको हॉस्पिटल छोड़कर आए हो तो यहाँ पर जब पेरेंट्स के बारे में कुछ लिख रहे हो तो ये भी लिखो कि तुमने उनके पेरेंट्स को एश्योर किया दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आर्यन, थिंक अबाउट अदर्स, डोंट सीक सेटिस्फैक्शन, डोंट सीक एप्रिसिएशन। हैव यू अंडरस्टूड? या मैम। सिर्फ सोशल थीम बनाने से सोशल चीजें नहीं दिखती हैं, है ना। when we are actually concerned about others, when we are actually showing our interpersonal skills, those things will actually show more of your people qualities or your concern towards people, ठीक है। Okay, ma'am. As I am a graduate now, so will these themes in the character I am writing, the designation as a student, college student, will work, or You should I have to write take it around according to myself? the picture, ठीक है। तुमने भी तो एक लाइफ जिया ही है ना, अपना कॉलेज लाइफ। राइट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आर्यन, डोंट फोर्स योरसेल्फ। हमेशा एक पिक्चर को ध्यान से देखो, सोचो मैं उस पिक्चर में होता तो मैं कौन सा कैरेक्टर होता और मैं क्या कर रहा होता। अब मेरे को अगर क्लियरली 20 साल का कैरेक्टर दिख रहा है एंड उसको अगर मैनिपुलेट कर कर एज चेंज करो तो ठीक नहीं है ना। 1 2 3 इयर्स ऊपर नीचे फिर भी ठीक है, ठीक है। Yes, देन ma'am. यहाँ एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग सही है। So, fourth picture mein, he saw his younger brother Yash. This story is not fine. I will share a video with you later. Okay, I had made a video on this story. You rewrite another theme or maybe same theme if it matches you, and then show it to me. पिक्चर को कभी भी ऑब्जर्व करो आर्यन तो हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज मूव करो। लुक एट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पिक्चर वेल, ठीक है। आज मेरे को मेरा एक स्टूडेंट बता भी रहा था कि मैम मेरे एसएसबी में कोई तो था मेरे बगल में जिसको पिक्चर में इंसेक्ट्स और बटरफ्लाईज एंड ऑल दिख रहे थे। पिक्चर को हमेशा ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, मूव इन अ सर्कल एंड हर एलिमेंट को देखो। इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो देयर इज अ मैन स्टैंडिंग हियर, देयर इज अ बॉय सिटिंग हियर, देयर इज अ बेड एंड देयर इज अ बाउल हियर एंड दिस इज अ वेरी नाइस पिक्चर। ये फीमेल एसएसबी में भी आ रहा है, तो मेल एंट्री में यहाँ मेल बैठा हुआ है, फीमेल एंट्री में इधर फीमेल बैठी हुई है। Yes, ma'am. तो बाउल कब रहता है बेड के पास, व्हेन समवन इज अनवेल। इस पर्सन को ध्यान से देखोगे तो ही इज एक्चुअली अ डॉक्टर आ रहा है, तो तुमने ऑब्जर्व ही नहीं किया। यू हैव टेकन कोचिंग समवेयर पहले, Yes, ma'am. I have been coached. फ्रॉम वेयर? Ma'am, I have taken coaching from Amas. फिर ये जो नेक्स्ट स्टोरी है लेफ्टिनेंट कमलजीत, पिक्चर में तो कैरेक्टर थोड़ा एजेड दिख रहा है ना। Yes, ma'am. तो तुमने लेफ्टिनेंट से ही स्टार्ट किया एंड इज अ न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर। वो रीच कर रहा है एंड बटालियन में घूम रहा है और भी सब कुछ देख रहा है। हीरो ने किया क्या आर्यन? हीरो ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे को लगता है एमास में तो ये पढ़ाते हैं कि बहुत कुछ करो, राइट मोर एंड मोर दैट योर हीरो इज डूइंग, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी कि वहां से आने के बाद तो बहुत एक्शंस लिख ही रहे होते हैं। तो तुमने क्या किया? हीरो ने कुछ भी नहीं किया आर्यन। यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, दैट योर हीरो ऑलवेज नीड्स टू बी अ डूअर ऑफ थिंग्स। हर स्टोरी में हीरो से काम कराओ कुछ कुछ, ठीक है। कुछ भी हीरो को गोल दे दो। पिक्चर में 2 सोल्जर्स हैं एंड देयर इज अ नंबर ऑफ मिसाइल्स व्हिच इज देयर। अब तुम क्या करोगे? यू वांट टू लर्न, यू वांट टू ट्रेन, यू वांट टू टॉक अबाउट न्यू वेपन्स, यू वांट टू टॉक अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज, यू वांट टू टॉक अबाउट ओरिएंटेशन, यू वांट टू टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, अब तुम यंग हो, डायनेमिक हो, तो लॉजिस्टिक्स की स्टोरी इज नॉट वेरी गुड। उसके अलावा तुम I think military exercise will be. हाँ कुछ एक्शन जो भी आ रहे हैं, मतलब लाइक आई टोल्ड ना, हर पिक्चर में पिक्चर को ऑब्जर्व करो और सोचो मैं वहां होता तो मैं क्या करता आर्यन। क्योंकि अपने इंटरेस्ट्स को तुमसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझता एंड योर साइकोलॉजी इज योर ओन हिडन इमोशंस, योर ओन हिडन डिजायर्स, व्हाट डू यू नीड, ऐसे कर कर, है ना। तो डोंट थिंक अबाउट मैं
पॉजिटिव स्टोरी लिखूं, मैं नेगेटिव स्टोरी लिखूं, मैं माइल्ड स्टोरी लिखूं, हमेशा पिक्चर को देखो और क्या सोचो मैं वहां होता तो मैं क्या करता। जैसे मान लो आर्यन तुम एक कमरे के अंदर घुसते हो, तो तुम कमरे के अंदर घुसे तो तुम ये थोड़ी सोचोगे कि पंखा मेरे सर पर गिर गया, नहीं सोचोगे। लेकिन अगर मान लो तुम किसी कमरे में घुसते हो और पंखा गिरा हुआ है, तो यू विल ऑब्वियसली मतलब डू समथिंग फॉर दैट फैन, राइट। तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस आर्यन कि मैं होता तो मैं क्या करता, बस इतना सोचोगे ना आर्यन, तो गोल्स हमेशा अच्छे बनेंगे, क्योंकि तुम्हारा ही नॉलेज दिखेगा, तुम्हारा ही एक्सपीरियंस दिखेगा, और नेगेटिव कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि तुम किसी पिक्चर में होते तो अपने लिए कोई नेगेटिव चीज तो नहीं लिखोगे। कोई कॉर्पोरेट का पर्सन दिख रहा है तो तुम ये देख के तो नहीं सोचोगे कि अरे मेरी कंपनी में सारे सेल्स ही खराब हो गए, ये तो नहीं सोचोगे। फिर यहाँ आईआईटी दिल्ली डाल दिया, तो ये नहीं करो ना। हीरो को प्रोमिनेंट बनाने का और भी बहुत तरीका होता है, शो बेटर थिंग्स फ्रॉम हिज साइड। अभी यहाँ पर बस टायर फ्लैटेंड हो गया और वो पहुंच गया। देखो पिक्चर जो है वो है नो वेकेंसी की, ठीक है। तुमने नो वेकेंसी से तो डील ही नहीं किया आर्यन। व्हाई आर दीज काइंड्स ऑफ पिक्चर्स गिवन टू यू कि तुम्हें कुछ जॉब चाहिए आर्यन, नो वेकेंसी आ गया, कल को तुम Ma'am, the picture 6 is two people are waving and one person is on the with the back going. आई थिंक सेवेंथ पिक्चर इज नो वेकेंसी। Yes, ma'am. उसमें कैरेक्टर 22 ईयर ओल्ड है। Yes, नहीं, ma'am. नहीं नहीं, तीन Ma'am, he कैरेक्टर्स, is दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ। carrying a कार bag. के पास जो बैग कैरी कर रहा है वो तो 22 ईयर ओल्ड नहीं है। पिक्चर को फिर से तुम ध्यान से देखना, द कैरेक्टर इज नॉट 22 ईयर ओल्ड, और वो देहरादून जा रहा है इंटरव्यू के लिए। बस टायर फ्लैटेंड हो गया तो उसने किसी से लिफ्ट मांग लिया। अगेन तुम्हारे हीरो ने मेन एक्शंस कुछ भी नहीं किया आर्यन। पहाड़ वहाड़ है पिक्चर में, कुछ ट्रेकिंग वगैरह ही ऐड कर देते, बैग में तो ऐसे एक्शन दिखा देते। कोशिश किया करो आर्यन एग्जाम्स क्लियर करने की, इंटरव्यूज क्लियर करने की स्टोरीज नहीं लिखो, ठीक है। ओनली इफ द पिक्चर क्लियरली शोज दोज थिंग्स देन यू राइट इट, अदरवाइज यू डोंट राइट इट। क्योंकि ये कैसे डिजायर्स हो गए आर्यन, लाइक आई टोल्ड योर साइकोलॉजी इज योर डिजायर। तो लोवेस्ट लेवल ऑफ डिजायर क्या होता है कि मैं सेटल हो जाऊं, जॉब मिल जाए। जब सब कुछ मिल जाता है तो हम लोग लीडरशिप की तरफ जाते हैं। लीडरशिप में क्या होता है कि हम लोग एम्बिशियस होते हैं आर्यन, वी वांट टू डू बेटर, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दूसरे लोगों की, ठीक है। Yes, ma'am. और इसके ऊपर आता है इनलाइटनमेंट, जहां हम लोग बहुत फ्री हो जाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सक्सेस फेलियर एक तरफ, ना यहाँ रहना है ना यहाँ रहना है, ठीक है। सो एवरी टाइम यू लुक एट अ पिक्चर तुम क्या सोचोगे, मैं उस पिक्चर में होता। पहले पिक्चर के एलिमेंट्स को ध्यान से देखो आर्यन, ठीक है। पिक्चर में माउंटेनियरिंग है, तुमने माउंटेनियरिंग करी या नहीं करी, तुमको माउंटेनियरिंग लिखना है, क्योंकि पिक्चर द सिचुएशन इज डिमांडिंग सो, ठीक है। जो उस माउंटेनियर का क्वालिटी तुम लिखोगे वो ही तुम्हारी क्वालिटी है। जैसे आई एम नॉट अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, तो इफ आई एम राइटिंग अ स्टोरी ऑन माउंटेन्स आई वुड हैव ओनली रिटन फॉर अ ट्रिप या फिर रिसर्च, क्योंकि आई लव टू स्टडी। लेकिन आर्यन मान लो तुम बहुत डायनेमिक हो, तो तुम कोई चैलेंजिंग ट्रिक भी लिख सकते हो, तुम कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड। Ma'am, but two people are waving hands. तो वो कोई भी हो So, सकते हैं ना जो उसको बाय कर रहे हो सकते हैं आर्यन, क्योंकि कैरेक्टर ना पिक्चर में छोटा है एक्चुअली। तो तुम या तो ये लिख सकते हो कि ही वाज थैंकफुल टू हिज फादर एंड अंकल हु ड्रॉप्ड हिम, बस इतना लिख दो। या फिर मींस and इफ he's also wearing coat and pants, so that's a formal attire. नो That's नो, why I wrote the story. इन कोट एंड पैंट आर्यन, यू हैवंट ऑब्जर्व द पिक्चर इन अ गुड मैनर। एक मिनट रुको, आई विल ओपन द पिक्चर। तुम तो बुरा बताने से ही नर्वस हो जा रहे हो। No, ma'am. हो रहे हो, रोने जैसी आवाज हो रही है तुम्हारी आर्यन। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि आई विल प्रेज यू अ लॉट। No, ma'am. I'm here for a feedback only. आई Positive, विल negative. प्रेज यू लेटर। एक मिनट रुको, आई जस्ट ओपन। तो तुमने कोचिंग कौन से ईयर में लिया था? Ma'am, last year, February month. हम्म।
देखो, दिस इज द पिक्चर एक्चुअली। ये कैरेक्टर कहाँ तुम्हें कोट पैंट पहनकर 22 साल का लग रहा है? कोट पैंट पहना है इसने? नहीं पहना ना? मैम इंस्टेंटली तो थोड़ा कोट पैंट फॉर्मल अटायर लगा था, बट देखो, एज वी आई आर ऑब्जर्विंग नो मोर। नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि हो जाता है मिस्टेक्स, जस्ट थिंक लाइक दिस एंड लेट गो। बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी पिक्चर देखोगे, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज, 30 सेकेंड्स तक सिर्फ पिक्चर को देखो आर्यन, और सोचो मैं वहां होता तो मैं क्या कर रहा होता। ठीक है? मिस्टेक से कुछ नहीं होता है। आई एम सीइंग इट करेक्टली बिकॉज आई एम टीचिंग। अभी हो सकता है हम खुद लिख रहे होते तो उल्टा सीधा ही लिख रहे होते। सो यस डोंट मैम। थिंक सो मच। यस मैम तुरंत कह रहे हो तुम। Ma'am, actually, the problem is that whenever I move to SSB, at least 2-3 pictures are there. In the background, there is a mountain. So, is it right making all of the themes similar of tracking, नहीं, mountain expedition? यू कैन राइट ट्रेकिंग, माउंटेन एक्सपेडिशन, रिसर्च, ट्रिप विथ फैमिली, किसी में एडवेंचरस, किसी में चैलेंज। अगर पिक्चर में बैकग्राउंड है वैसा तो, और आर्यन प्रोमिनेंट है तो, यस यू कैन यूज दैट। बैकग्राउंड में माउंटेन्स हो, कोट पहनकर लोग हो, तो तुम टीम एक्टिविटी करा सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रिप करा सकते हो, या डेवलपमेंट भी करा सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी ना रूल याद करके मत जाओ, तुम बस ये ध्यान में रख कर जाओ कि मैं हर पिक्चर को ध्यान से देखूंगा और सोचूंगा कि मैं वहां होता तो मैं क्या करता। जैसे आर्यन, if I was there in this picture, I would have made this character the hero and I would have written कि summer vacation आया है and he is a scientist। तो इसने मतलब कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और इसके लिए ही हैज बीन कॉल्ड टू अ कॉलेज इन देहरादून, शिमला, ऐसे करके कोई भी प्लेस। तो वो सोचता है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक हिज सन रोहन फॉर अ कैंप और समथिंग, और वो ले जाता है। ठीक है? फिर अपना काम करता है, फिर इसको लेकर सब लोग हैप्पीली आ जाते हैं। दिस आई वुड हैव रिटन क्योंकि आई एम नॉट एडवेंचरस। लेकिन मान लो आर्यन, इफ आई वाज एन एडवेंचरस गर्ल, आई वुड हैव मेड हिम द हीरो and then I would have talked about he doing something। तो तुम इस पिक्चर में होते आर्यन तो तुम कौन से कैरेक्टर होते और क्या कर रहे होते? तुमने जो फ्लैट टायर की स्टोरी लिखी है तो तुम इसको भी हीरो बनाकर लिख सकते हो कि ये कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था, रास्ते में देखता है एक बच्चा खड़ा है क्योंकि कोई बस वस फ्लैट हो, मतलब अब बस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ बच्चा नहीं, या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन ड्रॉप द चाइल्ड एंड देन यू कैन वेव, और फिर अपने ऑफिस का काम वाम अच्छे से कर लिया, यू कैन ऐड दिस थिंग। बट यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक मैं होता तो क्या करता। मेरे को बताओ, तुम यहाँ होते तो तुम क्या कर रहे होते? Ma'am, I would be the younger character and uh, like going for any workshop of corporate. In between, I would have taken तुम्हारे for लाइफ में Chinese. कॉर्पोरेट के अलावा कुछ नहीं है? हाँ। एक बार कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया तो सारे स्टोरीज में कॉर्पोरेट ही डालते जाओगे तुम। What is this? No more corporate thing. Now you have one rule from my side, दो स्टोरीज से ज्यादा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट नहीं लिखोगे तुम। Sure, ma'am. अभी ये वाला पिक्चर है, why will you write he saw no vacancy chart and felt skeptical? ये मत लिखो he saw the no vacancy chart and he understood that because of recession or because of XYZ thing, there's a no vacancy scenario from last 1 month, last 2 months. You write that he decided to use the time as an opportunity to become better or to upgrade himself and then he prepared for it। देखो यहाँ पर emotions में कितना difference आ जाता है। He decided to take the scenario as a challenge, he decided to take it as an opportunity, so these things create so much difference, आर्यन, है ना? Yes, ma'am. हाँ। फिर ऑल इंडिया रैंक 10 भी कर लिया तुमने, टॉप आईआईटी सीडीएस तो क्लियर किया नहीं। आई एम नॉट ह्यूमिलिएटिंग यू बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसा कंटेंट नहीं लिखो। अपने ट्रेट्स दिखाओ ना, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स। जैसे तुमने भी तो यही किया ना, तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिली तो तुमने सेल्स में ले लिया। तो व्हाट डिड यू डू? यू यूज्ड
द टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी, तुम वेस्ट आउट तो नहीं हो रहे हो ना आर्यन, तो वैसा ही कंटेंट लिखो। एंड कुछ चीजों को इंक्लूड करो ना, जैसे तुमने फोटोग्राफी लिखा है तो तुम वो माउंटेन वाले पिक्चर में फोटोग्राफी से क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हो, करो कनेक्ट। मैम फोटोग्राफी को लास्ट स्लाइड वाली पे मैं डाल देता हूँ नहीं, ब्लैंक ब्लैंक। स्टोरी में वो मत लिखो आर्यन, ब्लैंक स्टोरी बिकॉज यू आर वर्किंग, तो तुमने जो सबसे रिस्पॉन्सिबल काम किया आज तक, जैसे शॉर्टेज ऑफ पीपल हो या कोई लास्ट मिनट प्रोजेक्ट हो या कुछ, वो कर कर लिखना और अपने आप को डिफेंस एस्पिरेंट भी ऐड करना, ठीक है। द आइडिया इज ओके बट द गोल इज नॉट ओके। फिर कॉलेज ही भेज रहे हो आर्यन, और कुछ अपने फ्रेंड से मिलोगे तो और भी तो चीजें कर सकते हो, सबको बुलाकर रियूनियन कर लो, सी द प्लेसेस एंड ऑल, फैमिली मेंबर्स से मिलो, उसके फैमिली मेंबर्स से मिलो। हर स्टोरी में एग्जाम क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तुम ना थोड़े थीम्स प्रिपेयर कर कर रख लो आर्यन, फैमिली रिलेटेड थीम्स, फ्रेंड्स रिलेटेड थीम्स, रीयूनियन रिलेटेड थीम्स, ठीक है, कॉर्पोरेट रिलेटेड थीम्स, फिर अलग अलग जो कॉमन पिक्चर्स होते हैं, ब्रिज रिलेटेड थीम्स, विलेज रिलेटेड थीम्स, थोड़ा प्रिपेयर कर कर रख लोगे तो सेम टाइप ऑफ कंटेंट नहीं लिखते रहोगे। Ma'am, but the last one was not of preparing and all. He was sitting with his friend and gossiping about यहाँ how तुमने his क्या life लिखा is है, there. मोहित got inspired and Bharat shared his IIT preparation notes and recorded lectures. Mohit also studied and got admission in IIT later. यही लिखा है ना तुमने, Yes, ma'am. तो क्यों लिखा है, नहीं करो ना ये। Okay. हाँ, ये वाली स्टोरी ठीक है। फिर यहाँ IIT कानपुर डाल दिया तुमने। थोड़ा ना इमोशंस भी ऐड किया करो कि वो लोग वहां पर गए, दे फेल्ट हैप्पी, एक्साइटेड, कुछ दे वर हैविंग गुड टाइम व्हेन दे सॉ समथिंग, है ना। तुमने लाइफ जैकेट और रोप क्यों फेंका, तुम किसी और को फेंकने बोलो, तुम तो वहां पर जाओ, तुम तो पहले से ही स्विमिंग क्लब के कैप्टन हो। Ma'am, in the coaching they have taught that avoid swimming and all. हम्म। लेकिन तुम सच में क्या करते आर्यन, अगर तुम उस पिक्चर में होते तो तुम सच में क्या करते। Ma'am, I would have jumped in the river and देखो आर्यन, हो sing. सकता है कि जो तुम्हारे कोचिंग में सर बता रहे थे वो थोड़ा इस तरीके से बताना चाह रहे होंगे कि हर बच्चे को तो स्विमिंग नहीं आती, या पिक्चर में अगर कभी ज्यादा करंट दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, टाइम कम होता है, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल काइंड्स ऑफ सिनेरियोज टू यू। तो तुम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपने फ्रेंड को जरूर बोल दो टू थ्रो दोस थिंग्स या टू थ्रो रोप या कुछ, लेकिन तुम खुद भी जाओ आर्यन। देखो, Sure, यूज ma'am. योर ओन विजडम ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कि वो सर कुछ और सिनेरियोज भी बता रहे हो, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव आल्सो सीन दिस थिंग इन क्लास कि व्हेन आई एम टीचिंग, तो समटाइम्स सम पीपल आर क्लास में सो रहे हैं या खा रहे हैं, तो 10% बात सुनकर फिर पूछते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट यूज योर ओन विजडम ऑल्सो, ठीक है। डू Sure, बोथ ma'am. द थिंग, बट अपना भी शो करो। फिर क्या फायदा तुम अपने हीरो को स्विमिंग क्लब का कैप्टन बना रहे हो और सिर्फ रोप से ही उसको खींच रहे हो। ये शुरू में डालना, जैसे ये स्टोरी को कैसे लिख सकते हो, जयंत 21, जैसे अभी तो तुम वर्क कर ही रहे हो, जयंत 21 was working in XYZ company as a sales executive. He was happy to know that his younger sister has cleared JEE and has gotten IIT Roorkee as a college. But as he talked to his mother, he came to know that she was a little concerned sending her there alone or something. तो सेंडिंग हर अलोन के लिए यहाँ पर ये भी दिखाओ कि ये लोग रूरल बैकग्राउंड से शुरू में आ रहे हैं, नहीं तो वाई विल शी हेजिटेट। तो वो अपनी मम्मी को बोलेगा कि ही वुड हेल्प हर, वो जाएगा, सब चीजों को करेगा एंड ऑल, है ना। द आइडिया इज ओके, बेटर तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। Yes, ma'am. एंडिंग स्टोरी में इंटर्नशिप एंड ऑल से मत करो, स्टोरी में एंडिंग करो कि मम्मी एश्योर्ड है एंड द सिस्टर इज आल्सो हैप्पी। दिस स्टोरी इज फाइन। थोड़ा चाहो तो इमोशंस ऐड कर सकते हो, जैसे ही वाज एक्साइटेड, ही वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट इट, है ना।
Ma'am, actually in coaching they told instead of तुम्हें हम writing. चाटा मारेंगे, यहाँ ही रैन कॉन्फिडेंटली लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? Yes, ma'am. तो फिर ही वाज Ma'am, I डिटरमाइंड was टू, skeptical about it. Just was asking about it that should I write showed discipline, spoke confidently like this, or show समटाइम्स them by attributes, actions? नॉट टू मच बट समटाइम्स यू कैन, जैसे यहाँ ही रैन कॉन्फिडेंटली, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ही वॉज डिटरमाइंड टू कंप्लीट इट, चल जाएगा, बट डोंट ओवर डू इट। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग कैसी स्टोरी लिख देंगे, विथ हिज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एबिलिटी ही डिड इट, पर वो ऐड ही नहीं करेंगे कि क्या किया, मतलब टीम मेंबर्स को बुलाया। तो दिस इज रॉन्ग आर्यन। बट जैसे इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ स्टोरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन और तुम लिखते हो आर्यन, with his organizing and planning he did it confidently, the event was successful, now this is a bad part, क्योंकि we don't know do you really have organizing and planning ability or not, लेकिन तुम modify करते हो कि he got the task, he thought of a plan, he called a meeting of all the team members and then put forward his idea. He took their ideas as well. They had an intelligent discussion or they had a productive discussion. Now this is not problematic, Aryan, क्योंकि तुम इसमें steps तो बता ही रहे हो, बस तुमने क्या किया है, स्टेप्स में एडवर्ब ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट वाला पर्सन इज प्रॉब्लमैटिक, सेकंड वाला पर्सन इज नॉट प्रॉब्लमैटिक। दिस इज व्हाई आई टोल्ड कि जो भी कोचिंग में ऐसे पढ़ा रहे होते हैं तो वो लोग एक लिमिटेड टाइम में पढ़ा रहे होते हैं, है ना आर्यन? Yes, ऐसे ma'am. रोज आकर हर सिनेरियो नहीं एक्सप्लेन कर रहे होते। दिस इज व्हाई इट गेट्स प्रॉब्लमैटिक। डोंट राइट दिस स्टोरी इन योर ब्लैंक स्टोरी। ब्लैंक स्टोरी में जैसे तुमसे ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई शुड यू गेट रिकमेंडेड, वो तुम अपना शो करो आर्यन, ठीक है? तो Ma'am, एक ओवरऑल बार स्टोरी, check कर लीजिए. Is it right or wrong? स्टोरी आइडिया वाइज तो ठीक है, बट आई डोंट लाइक दिस स्टोरी। Ma'am, what is wrong in it? आई डोंट लाइक दिस थीम फॉर योर Okay. ब्लैंक स्टोरी आर्यन। ऐसे नहीं, नॉर्मल स्टोरीज के लिए नहीं, बट फॉर योर ब्लैंक स्टोरी आई डोंट वांट यू टू राइट इट, ठीक है? Okay. सो ओवरऑल स्टोरीज में आर्यन बी मोर डायनेमिक, ऑब्जर्व थिंग्स इन अ बेटर मैनर, ठीक है? डिटेल्स ऐड करो, डिटेल्स में तुम जरूर क्वालिटी ऐड कर सकते हो। जैसे किसी स्टोरी में अगर कोई मीटिंग है, तुम लिखते हो कि ही प्रिपेयर्ड हिज प्लान एंड वॉकड इनसाइड कॉन्फिडेंटली, नो प्रॉब्लम आर्यन, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ही वाज कॉन्फिडेंस एंड विथ हिज कॉन्फिडेंस ही क्लियर्ड इट। तुमने कुछ बताया ही नहीं कि उसने क्या किया। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? Yes, ma'am. और ऑब्जर्व भी पिक्चर्स को बेटर करो आर्यन। Ma'am, actually, I have set of themes already prepared for the most repeated pictures in the SSB, but your pictures were completely new. तो आर्यन एसएसबी में न्यू आ गया तो क्या करोगे? एक Yeah, आर्यन that's देखो, तुम में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कि यू डोंट अप्रिशिएट बीइंग रॉन्ग, तुम थोड़े घबरा जाते हो। तो थोड़ा आर्यन ये चीज को अपने माइंड से निकाल दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस आर्यन। sure, ma'am. I'll work on it. एंशियस नहीं होना, प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलती है यहाँ। टीचर नेवर हेट स्टूडेंट, ये कैसा सेंटेंस है? हेट वर्ड आया किसी भी वर्ड में, सेंटेंस नहीं आ रहा हो तो सोसाइटी पे डाल दिया करो। जैसे I hate this thing where people are littering on the streets. So I would have written that environmentalists या nature lovers hate littering of streets, या educated citizens hate corruption, educated citizens hate discrimination, इस तरीके से, ठीक है? देखो, WAT is all about your association. Association का क्या मतलब होता है कि हम लोग एक चीज को किससे एसोसिएट करते हैं आर्यन। जैसे मान लो कि आई एसोसिएट माउंटेन्स विथ फ्रीडम, तो वेन एवर आई एम थिंकिंग ऑफ माउंटेन्स आर्यन, मेरे हार्ट को हमेशा क्या फील होगा? फ्रीडम फील होगा। तो ये तुम्हारे एसोसिएशंस ही चेक कर रहे होते हैं। एसएसबी में सेंटेंस, रियल साइकोलॉजी में ये सेंटेंस राइटिंग टेस्ट नहीं होता, एसएसबी में ये सेंटेंस राइटिंग टेस्ट होता है टू चेक योर इंटेलिजेंस एज वेल एज कुछ लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ग्रामर और स्पेलिंग वो लोग बहुत गलती करने लगते हैं टाइम प्रेशर में आकर, इसलिए। बट है तो एसोसिएशन। रेड से क्या एसोसिएट करते हो आर्यन? जैसे आई कनेक्ट रेड विथ ऑस्पिशियस, रेड विथ हैप्पी फेसेस, व्हाट इज रेड फॉर यू Ma'am, क्विकली? red color attractive तो makes वही an लिख दो, outfit. वही लिख दो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफ्रैक्ट्स लीस्ट, यू राइट दैट ओनली, ठीक है? It is repeated, ma'am, that word.
I हाँ, wrote another sometimes in one. your SSB also you will get one word again and again, तो तुमको अलग अलग चीजें ही लिखनी है, ठीक है? Sure, ma'am. Student never bring shame to teacher. Shame again कुछ नहीं आ रहा है तो put it on the society. Discrimination is a shameful practice, or proactive people do not participate in XYZ shameful practice. ऐसे तो do not वाले बहुत sentences नहीं लिखते. Enemies teach more than friend. 24 साल के तुम हो, कितने enemies हो गए आर्यन तुम्हारे? एनिमी को कनेक्ट कर देते सोल्जर वोल्जर से, या वाइज पीपल डोंट हैव एनिमीज, फ्रेंडली पीपल डू नॉट हैव एनिमीज कर कर एनिमल्स वगैरह से कनेक्ट कर दो. सिंसियर स्टूडेंट नेवर आस्क सिंपैथी. सिंपैथी को पुअर से कनेक्ट करो, हेल्पलेस से कनेक्ट करो और उनको हेल्प करो, है ना? जैसे काइंड पीपल शो सिंपैथी टू पुअर या हेल्प द पुअर, ऐसे कर कर लिख दो. हर चीज में स्टूडेंट टीचर क्या डाल रहे हो? ईस्ट से Yes, क्या ma'am. कनेक्ट करते हैं? विजडम की, ग्रोथ की, प्रोडक्टिविटी की. नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी वगैरह के बारे में बात कर देते ना. Yes, ma'am. फिर स्टूडेंट स्पीक ट्रूथ टू टीचर. स्टोरीज में कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, यहाँ पर स्टूडेंट स्टूडेंट. फोर्सफुल को किससे कनेक्ट करते हो? जैसे फोर्सफुल को नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, लॉ से कनेक्ट कर सकते हैं, बट दिस स्टोरी इज ऑल्सो फाइन, नो सॉरी, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम. सक्सेस प्रिवेंट्स एगनी. एगनी तो डीप पेन होता है ना. हेल्प करो एगनी में, काम रहो एगनी में. सक्सेस प्रिवेंट्स एगनी कैसे होता है? If success is preventing agony for you, there is someone who is always going to be more successful than you. Yes, ma'am. Leaders never rigid on ideas. तुम rigid हो? Ma'am, I am malleable. नेवर नेवर बार बार नहीं लिखते. फ्रेंड्स नेवर क्रॉस लाइन इन रिलेशन. ऐसे सेंटेंसेस सोचना ही क्यों आ रहे हैं? देखो, जो हमारे लाइफ में नहीं होता है हम वो नहीं सोचते हैं. आई एम अ वेजिटेरियन, विल आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड थिंक कि टुडे आई विल नॉट ऑर्डर चिकन? तो यहाँ पर नेवर क्रॉस लाइन मतलब तुम्हें प्रॉब्लम होती है कोई लाइन क्रॉस कर रहा होता है ना? अकड़ू टाइप तो तुम हो ही. No, ma'am. तुम्हें कोई गलत बोलता होगा तो बहुत बुरा लगता होगा ना. मेरे को भी लगता है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड. नेवर नेवर बार बार नहीं यूज करते, ठीक है? जैसे बुली. बुली इज अ नेगेटिव वर्ड. नेगेटिव वर्ड्स को सॉल्व किया करो. बुली को कैसे सॉल्व करोगे? करेज से, फेसिंग से, शो दोज थिंग्स. वैसे तो WATs बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन माइंड में थोड़ा क्वालिटी का ध्यान रखो और नेगेटिव वर्ड्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? Ma'am, how many can be like eccentric and not up to the standards? Aryan, it depends on your TATs. When TATs are very good, अगर तुम्हारे WATs average भी हैं तो भी you can still score good and you can still get recommended. लेकिन अगर TATs अच्छे नहीं हैं, WATs बहुत अच्छे हैं, तो it won't create a lot of difference, आर्यन. क्योंकि WAT is a confirmatory test. जो TATs में क्वालिटीज आई तुम्हारी, WATs आर कंफर्मिंग दोज क्वालिटीज. क्योंकि रियल में तो WATs बहुत पावरफुल टेस्ट होते. I can also tell a lot about people from their 10 associations. लेकिन in SSB the weightage of WATs is not that much. Okay, ठीक ma'am. है? इसलिए तुम्हारे भी, तुमने जहाँ से भी खेती हुई होगी उन्होंने TATs ज्यादा पढ़ाया होगा. वैट्स में बस बोला होगा कि सिंपल और सेंसिबल सेंटेंसेस बना लो, है ना? बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाया होगा. इसका क्या रीजन होता है? TATs ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है. और TATs आर अ वेरी पावरफुल टेस्ट. मतलब वी कैन आइडेंटिफाई अ लॉट. पुराने टाइम पे उसको लोगों के करियर काउंसलिंग के लिए भी यूज किया जाता था कि कौन सा करियर उनको लेना चाहिए एंड ऑल, है ना? Yes, ma'am. जैसे प्रैक्टिस डेली, प्ले बोथ. प्ले बोथ ठीक है, लेकिन अपनी प्रायोरिटी स्पेसिफाई कर दो. जैसे प्रायोरिटाइज्ड कॉलेज प्लेड बोथ बाय टेकिंग केयर ऑफ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, या फिर प्रायोरिटाइज्ड कॉलेज प्लेड फॉर टीम इफ टाइम अलाउड और समथिंग. अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखो, ठीक है? देखो, दो लोगों ने तुमको ऑर्डर दिया और कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर दिया, आर्यन. अभी कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर मिलता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने इमीडिएट सीनियर से कंफर्म करना चाहिए. मान लो आर्यन, मैंने तुमको बोला कि वी विल कनेक्ट एट 10 और मेरा कोई असिस्टेंट होता जो तुमको बोलता कि 8 बजे करेंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम 8 बजे सोते सोते 10 बजे ज्वाइन कर लोगे? या फिर तुम उससे क्लैरिफाई करोगे कि मैम ने तो ये बोला था? क्लैरिफाई करोगे ना? और अगर बताने के लिए कोई भी नहीं है तो अपना डिस्क्रिशन यूज करोगे. कन्विंस्ड बाय शोइंग स्किल सेट.
ये ठीक है। फोर्थ में बहुत ही लो मतलब पार्टिसिपेशन है तुम्हारा भी। एसआरटी सेज दैट विलेज में एपिडेमिक है, तो और चीजें करो, अपनी टीम को भी बनाओ, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने में, सैनिटेशन की चीजों में, अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट करो, जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सको करो। कुछ कुछ एसआरटीज में यू नीड टू राइट मोर, आर्यन, दिस इज वन ऑफ दोज एसआरटीज। फिफ्थ में तुम, Ma'am, actually the time was limited, so I had to cut it down. Actually, I could have नाउ यू written विल more, नॉट ma'am. कट इट डाउन, ठीक है आर्यन? Sure, ma'am. In fifth story, sorry, SRT, halting is not sufficient. You also gather villagers and try to extinguish fire. ठीक है? तुम तो ज्यादा ही लिखते हो स्टोरीज, 3 एक्शंस तो तुम लिख ही सकते हो। Yes, ma'am. थोड़ा ज्यादा लिखो ना। मैम कितना सफिशिएंट है एसआरटीज में, लाइक? बस एसआरटीज को कंप्लीट कर लो। सम एसआरटीज जैसे सेकंड थर्ड एसआरटी चल जाएगा, ठीक है? लेकिन फिफ्थ में यू नीड टू आल्सो शो योर ओन इनिशिएटिव। फोर्थ में थोड़ा और लिखने की जरूरत है। किसी किसी में एक से भी चल जाएगा, जैसा एसआरटी का डिमांड है, यू राइट अकॉर्डिंग टू दैट। 11th एसआरटी, द एसआरटी सेज दैट यू वर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, समवन पॉइंटेड आउट एट यू एंड सेड स्मोकिंग इज एन ऑफेंस इन द ट्रेन, ठीक है? मेरे को आर्यन अगर कोई पॉइंट आउट करके बोलेगा कि स्मोकिंग इज एन ऑफेंस, तो आई विल टेल कि आई डोंट स्मोक। व्हाई विल आई टेक इट पर्सनली? तुम्हें देखकर हम चोर चोर चिल्लाएंगे तो तुम भागने लगोगे? तो नो तुम मैम. यहाँ पर क्लैरिफाई करो कि क्लैरिफाइड द सिचुएशन, इट इज सम अदर स्मेल, ही डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, या फिर अग्रीड विथ हिम, अप्रिशिएटेड, एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल्स, या फिर एक थर्ड पर्सन स्मोक कर रहा हो सकता है जिसको तुम रोकोगे। जो हैबिट तुमको नहीं है वो तुम क्यों लोगे? 13 स्वैप्ड ट्रेन ऑन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए थे, तो तुम्हें एक एक्शन लिखना चाहिए कि रिमेन केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। खुद से कोई भी गलती हो आर्यन तो रिमेन केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आफ्टर मैम. दैट। 14 में बाहर भी आओ ना लिफ्ट के। मेंटेन काम लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेस्ड इमरजेंसी बटन, आफ्टर सम टाइम केम आउट, ऐसे कर कर। 17 टुक ऑटो एंड सुपरवाइज डेली। तुम्हारा कोई फ्रेंड भी तो होता होगा ना जो आसपास रहता होगा, फ्रेंड के भी घर पे रुक सकते हो तुम। मतलब दिस इज नॉट रॉन्ग आर्यन, 17th इज नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज में पीपल को भी यूज कर रहे होते हैं तो उससे हम लोगों को ज्यादा, मतलब ज्यादा क्वालिटीज विजिबल होती है आर्यन। जैसे कैरी इंस्पेक्शन, ठीक है? थोड़ा टास्क मैरिज के डेलीगेट कर दो, कोऑर्डिनेट करते रहो एंड देन डू इट वेल। फिर यहाँ थ्रो रोप एंड लाइफ जैकेट। तुम्हें तो स्विमिंग आती है। मैम बस उसी के चक्कर में नहीं लिखा था, बिकॉज दे देखो हैव आर्यन टॉट मी. क्या होता है, इंक्लूडिंग मी, जैसे साइकोलॉजी के ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं आर्यन, जैसे टीएटीज इज डिपेंडेंट ऑन नीड्स, डिजायर्स, इमोशंस, WATs इज डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन। ऐसा नहीं होता कि हर साइकोलॉजिस्ट को एक एक एसआरटी देकर पढ़ाई जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि पीपल टेल थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड समटाइम्स द वर्ड्स आर मिस इंटरप्रेटेड ऑल्सो। यस तो मैम. हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है जिन्होंने भी तुमको पढ़ाया होगा, आई थिंक उन्होंने मतलब मे बी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर कर ही बोला होगा। Once I also saw video of one psychologist जो कह रहे थे कि चाहे स्विमिंग आती हो या ना हो, कूद जाओ पानी में। तो क्या हो रहा होता है कि देयर इज अ परसेप्शन डिफरेंस इवन इन एसएसर्स आर्यन, है ना? मतलब देखो यस. क्वालिटी तो सेम ही निकल कर आती है, क्योंकि एक एसआरटी से तुम्हारा रिस्पॉन्स चेंज नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी अपना विजडम भी यूज करो आर्यन हमेशा। थोड़ा एसआरटीज में यू नीड टू राइट अ लिटिल मोर। यस मैम. 60th एसआरटी तो ये है ना कि तुम्हारा भाई बहुत ड्रिंक करने लगा है। मैम आई हैवंट रेड इट. यस मैम, यू आर राइट. तो पुलिस को क्यों रिपोर्ट करोगे? तुम अपने भाई को ही पुलिस की धमकी दे रहे हो। देखो मैम फॉर जस्ट रिमेम्बर डोमेस्टिक वन वायलेंस. थिंग। हाँ,
Ma'am, for domestic violence or cases related to close ones, acquaintances, relatives, and all, we don't need to go to police. You need to go to police. I am not sure, but according to me, 60th SRT जो है, because I am having two tests, so I don't remember. इसका 60th, एक मिनट रुकना. मेरे को लगता है कि इसका 60th SRT ये था कि your younger brother has been drinking a lot. Ma'am, it was his younger brother is an alcoholic and he often goes to take illicit country liquor. हाँ. So, तो तुम उसको थेरेपिस्ट ये सब के पास लेकर जाओ ना. यहाँ पर वायलेंस की बात कहाँ से आ गई आर्यन? ma'am, illicit word was written, that means banned and all. इलीगल ना. Yes, ma'am. नहीं, So, आई थिंक मेरे को खुद ही नहीं आता टेस्ट देकर. हाँ, illicit is illegal only. मतलब इट्स नॉट राइट. काफी लोग नहीं होते जो ऐसे ही बेच रहे होते हैं, महुआ, हड़िया, टॉडी, yes, ऐसे ऐसे ma'am. कुछ. So you talk you talk to him, you make him understand, take him to a therapist or something, help him come over his addiction. ठीक है. यहाँ पर वायलेंस थोड़ी है. Yes, यहाँ ma'am. जब तुम अपने पेरेंट्स का पार्ट लिख रहे हो एसडी में, तो ये चीजें ऐड करो कि यू आर अ लविंग सन आर्यन, यू आर हैविंग गुड मॉरल वैल्यूज, ऐसे कर कर थोड़ा ऐड करो कि योर पेरेंट्स फील हैप्पी कि तुम वर्क कर रहे हो, वर्क के बाद भी खुद के लिए भी टाइम निकालते हो, घर के लिए भी टाइम निकालते हो. थोड़ा चेंज करो. Ma'am, can I add how I help them in household chores? चोर्स बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तुम जॉब भी कर रहे हो, प्रिपेयर भी कर रहे हो, एक लाइन जरूर ऐड कर सकते हो. सेकंड में भी देखो, आई लर्न डेली एंड वर्क एज अ टीम, ये अच्छा है ना. थोड़ा और भी ऐड कर दो कि तुम न्यू आइडियाज देते हो आर्यन, तुम्हें जो भी टास्क दिया जाए वो टाइम पर एग्जीक्यूट करते हो. एक बार ना सारे क्वालिटीज को कनेक्ट कर कर एसडी लिख लो, फिर उसके बाद उसको छोटा कर लेना. फ्रेंड्स में देखो, क्वालिटीज हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लविंग हो, ह्यूमरस हो. ठीक है. अगर Yes, ma'am. फ्रेंड्स एंड कलीग्स आए तो टीम वर्क की क्वालिटीज ऐड कर दो, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ह्यूमर, ये सब चीजों के साथ साथ सेल्फ इमेज बैलेंस्ड मैनर में लिखो. पहले अपना वर्क ओरिएंटेड क्वालिटीज बताओ. ठीक है. जैसे हार्ड वर्किंग हो, गोल ओरिएंटेड हो, एम्बिशियस हो, ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर गोल्स हो. पीपल ओरिएंटेड क्वालिटीज बताओ कि आई केयर अबाउट अदर्स, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स. फिर सेल्फ ओरिएंटेड कि मैं क्यूरियस हूँ, मैं प्रोग्रेसिव हूँ, ऐसे करते हैं. यहाँ पर यू से दैट ठीक है, तुम्हें मिलिट्री ऑफिसर बनना है, इंजीनियरिंग कोर में, ये सब ठीक है. उसके बाद ये भी ऐड करो कि यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड. चलो, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स तो तुमने लिखा ही है. इसके बाद थोड़ा ये भी ऐड कर दो कि अगर तुमको सोसाइटी के लिए कुछ करनी है आर्यन, या कुछ अपने में डेवलप करना है, जैसे इंटीग्रिटी के साथ वर्क करना चाहते हो, थोड़ा इसको और ऐड कर देना. So overall, Aryan, if you work on these things, you can pass. 2-3 advice from my side, other than whatever I have told you. I'm not summarizing it again. First thing, Aryan, do not be scared of your own vulnerability or your own mistakes. सबसे बड़ा mistake जो हम लोग life में करते हैं वो ये होता है कि हम लोग mistakes करने से डरते हैं, अपने honesty को काफी बार बोलने से डरते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हर चीज को fabricate कर कर बोलो. तो according to me, you tell the honest things in a good way. ठीक है. जैसे तुम अपने पेरेंट्स सेक्शन में लिख सकते थे कि माई पेरेंट्स फेल्ट that I was not that focused on academics and I was focused on other things, but I learned from it and later cleared CGCAT and FCAT, ऐसे कर कर you later improved, ऐसे कर कर honest चीजों को लिखो आर्यन, तो ज्यादा बेटर होता है. Second thing, Aryan, that I want you to do is practice meditating a little. You should chant Om Namah Shivaya. तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से भी अच्छा है Saturn and Jupiter. So and chant like this, Om Namah Shivaya. तो ऐसे कर कर 10 मिनट्स सुबह को, 10 मिनट्स इवनिंग में करोगे तो यू विल नॉट गेट एंग्शियस आर्यन, क्योंकि आई हैव सीन वन थिंग इन योर बॉडी लैंग्वेज, तुम्हें बार बार क्रॉस किया जाए तो तुम डिफेंसिव भी होते हो थोड़ा, एंड डिफेंसिव होने के अलावा थोड़े एंग्शियस हो जाते हो, तो ये ध्यान रखना. थर्ड थिंग, व्हेन यू गो टू योर एसएसबी आर्यन, वहां डिफेंसिव नहीं होना. मतलब डिफेंसिव ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, लेकिन तुम काफी बार क्या करते हो, जैसे अपॉन आस्किंग कि व्हाई डिड यू नॉट क्लियर सीडीएस, यू आर टेलिंग एफ कैट एंड सीजी कैट क्लियर किया.
क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो आर्यन खुद को। मैंने तुमको खराब नहीं बोला। जब आई एम टेलिंग यू फीडबैक इन द साइक सेक्शन, अगेन यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ आर्यन। यू आर नॉट आस्किंग मी कि मैम इसको इम्प्रूव कैसे करूं, तुम ये बता रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये आर्यन इस टेंडेंसी से थोड़ा ऊपर हो जाओ, क्योंकि दिस इज नॉट अ बैड टेंडेंसी। मे बी कॉर्पोरेट में इसकी जरूरत होती होगी या लाइफ में जरूरत पड़ी होगी, लेकिन स्टॉप डिफेंडिंग, ठीक है? बी हु यू आर एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हु यू आर आर्यन, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है आर्यन, ऑल द बेस्ट। Ma'am, I have made a strategy like I do cut SD a little. Don't write it for 15 minutes, like 10 minutes maximum I take, तो तुम and देखो for ना 15 मिनट्स, थोड़ी और चीजें बता दो अपने बारे में। in the remaining 5 minutes I complete my VAT, whatever नहीं is left. मतलब and I feel that is not very good. Why I tell you? क्योंकि psych test is a test of your unconscious mind. It is not a test of your conscious mind. तो consciously बहुत कुछ क्यों add subtract कर रहे हो? Why are you carrying extra pressure of going back to your WATs? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अगर 4 WAT नहीं लिखे तो वो रिकमेंड नहीं होता। जब तुम सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो, WAT स्क्रीन पे जा रहा है, तो क्वालिटी लिख कर आगे बढ़ जाया करो। सन वर्ड आया, तुम्हें नहीं टाइम मिला, तो तुम पंक्चुअल जैसे लिखकर आगे बढ़ गए। डोंट डू इट टू फ्रीक्वेंटली, यू कैन डू इट 2-3 टाइम्स, डोंट डू इट टू फ्रीक्वेंटली, लेकिन डोंट डू दिस। जो टेस्ट कर रहे हो उसी पे फोकस करो आर्यन। डू एवरी टास्क विथ योर 100% अटेंशन, इंटेंट एंड ऑल, तो यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन एवरीथिंग। Yes, ma'am. And ma'am, I have some doubts in TET. Like in the previous coaching that I had taken, they told me that the picture should be within the first 2-3 lines. So is it correct, or the हाँ, picture पिक्चर should को be देखो और सोचो मैं वहां Yeah. हूँ तो मैं क्या कर रहा होता, और पिक्चर के हिसाब से ही गोल लेते हैं ना हम लोग आर्यन। जो भी तुम अपनी स्टोरी में हीरो को एक्शंस वगैरह दे रहे हो, वो तो पिक्चर के हिसाब से ही दे रहे हो। तो आइडियली इट शुड कम इन फर्स्ट 2-3 लाइंस, बट इट ऑल्सो वेरीज। जो बच्चा 15 लाइन की स्टोरी लिखता है, उसने 5th-6th में लिख दिया तो कोई बात नहीं, एक बार पिक्चर ऊपर नीचे आ गया तो कोई बात नहीं आर्यन। एंड हाउ आई टीच इज अ लिटिल डिफरेंट। हाउ आई टीच इज की पिक्चर को देखकर गोल बनाओ, एंड गोल तुम्हारा शुरू में आ जाना चाहिए। पिक्चर मिडिल में आया तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पिक्चर शुरू में ही आता है, अगर पिक्चर से रिलेटेड गोल बना रहे होते हो तो। And ma'am, I am not much comfort, as I am from a civilian background, not much comfortable in writing military-based stories like तो military प्रिपेयर exercises and कर all. लो, तुम्हारे कुछ तो फ्रेंड्स होंगे जिनको आता होगा, यू विल गेट कंफर्टेबल। हर चीज बचपन से थोड़ी आती थी तुमको, Yes, तो ma'am. So प्रिपेयर like इट। in military exercises and all, there is a lot of technical stuff. So what अरे basic I can टेक्निकल write? स्टफ तुमको नहीं लिखना होता ना, तुमको तो पर्सनालिटी की स्टोरी लिखनी होती है। तुम अगर डॉक्टर की स्टोरी लिख रहे हो तो तुम क्या लिखते हो कि उसने पैरासीटामोल दिया, उसने XYZ मेडिसिन दी, उसने XYZ इंस्ट्रूमेंट यूज करके सर्जरी किया? नहीं ना। क्वालिटीज तो हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड, एक्शंस बेस्ड, सॉरी एक्शंस तो हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड लिख रहे होते हैं कि डॉक्टर ने सब कुछ अरेंज किया, नर्स को ये बोला, टास्क डेलीगेट किए, थॉरली सब कुछ देखा, अटेंटिवली चीजों को किया। ये थोड़ी लिखना होता है कि कौन सा टूल यूज किया। और थोड़ा अपने फ्रेंड से पूछ लो, थोड़ा वीडियोस देख लो, यू विल गेट आइडियाज। अब Okay, मिलिट्री ma'am. एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें आएंगी? पार्टिसिपेशन आएगा, शुरू में एक्साइटमेंट आएगा, टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो आएगा, क्या क्या नई नई चीजें सीखी ये आएगा, क्या क्या एक्टिविटीज की ये आएगा, मोरल कैसे हाई रखा, ये चीजें आएंगी। तो वो प्रिपेयर कर लो और अपने 2-3 फ्रेंड्स से पूछ लो कि इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है। Okay, ma'am. And in ma'am NCC stories, like how can I write how the event got unfolded? I'm little confused in it. Like directly मैं लिख दूं कि he is from this college and went for an NCC camp for basic obstacle course and all, or I should create a plot. यू कैन क्रिएट अ प्लॉट इफ यू विश, यू कैन क्रिएट अ बैकग्राउंड अगर तुमको देना है। तो नहीं क्रिएट करना है तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस ऑल्सो कि रमेश लेट्स से an NCC cadet was going on XYZ कैंप के बारे में थोड़ा बताकर चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर दो। लेकिन तुमको कुछ बैकग्राउंड देने का मन है अलग से, तो तुम वो भी ऐड कर सकते हो कि ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट, ऐसे कर कर इसलिए कर रहा है, वो भी ऐड कर सकते हो आर्यन। देखो, like I have been telling you, don't go with any hard and fast rules.
कि मुझे यही करना है, मुझे वो ही करना है। बस पिक्चर को देखो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखो, सोचो मैं होता तो क्या करता, मेरा बैकग्राउंड क्या होता है, एंड देन राइट द स्टोरी आर्यन। जितना कम रूल्स याद कर कर जाओगे उतना फ्रीली लिखोगे आर्यन, एंड खुद को समझो, जितना खुद को समझोगे ना उतना अच्छा कंटेंट लिखोगे। जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो आर्यन, कैसे प्रैक्टिस किया करो, कोई पिक्चर देखा, पिक्चर रिलेटेड प्रोफेशंस पढ़ो, पिक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे माउंटेन आया तो गूगल करो माउंटेन रिलेटेड एक्टिविटीज, माउंटेन रिलेटेड प्रोफेशंस, जो जो तुमको अच्छा लगता है उसको प्रिपेयर करते जाओ आर्यन, बस। Okay, ma'am. In my previous SSB, one picture was being shown that in a field there was a fire. So it was clearly depicting stubble burning kind of scenario. हम्म। So, but I didn't write that kind of problem because in the coaching they taught me don't introduce आर्यन unnecessary problems and all. So is it हम्म, the right way तो or wrong? नॉट फॉर नॉट एवरीथिंग कोचिंग इज रिस्पॉन्सिबल, नंबर वन। कल को तो Yes, तुम ma'am. ये बोलोगे, कल फिर से रिकमेंड नहीं हुए, बोलोगे मैम ने तो ये बोला था, मैम ने तो वो बोला था आर्यन। तो एक कोचिंग में तो 100 स्टूडेंट्स होते होंगे, है ना। Yeah. 100 स्टूडेंट्स को अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट पढ़ा रहा है तो वो 2 घंटे में तुमको कितनी चीजें बता सकते हैं आर्यन। जब वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करो, तो उनका क्या मतलब होता है आर्यन, कि जहां प्रॉब्लम नहीं दिख रही है वहां मत क्रिएट करो। लेकिन जहां प्रॉब्लम दिख रही है तो वो ये तो नहीं कहते, अगर कोई कहता है तो इट इज रॉन्ग, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट पीपल डोंट से इट कि अगर पिक्चर में प्रॉब्लम दिख रहा है तो प्रॉब्लम को अवॉइड कर दो आर्यन। सी व्हाट दे मीन टू से इज कि जब पिक्चर में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा हो तो नहीं क्रिएट करते, लेकिन अगर पिक्चर में प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो तो और इजी पिक्चर है ना आर्यन, प्रॉब्लम क्लियर है, तुमको सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो थोड़ा बाहर निकलो, देखो फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम कोचिंग, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम मी लर्न, बट ऑलवेज यूज योर ओन विजडम आर्यन, क्योंकि दिस इज योर Yes. लाइफ एंड नो वन नोज यू बेटर देन यू आर्यन। Yeah, sure, ma'am. Sure. Ma'am, I have written some basic stories on the most repeated cat pictures. Can I share it with you on WhatsApp and नो, get your feedback? आई कांट रीड ऑल। Like, फिर भी ma'am, बता तो दिया कि तुम्हें क्या क्या इम्प्रूव करना है, तुम उस पर इम्प्रूव करो ना। तुम अभी भी क्यों इस पिक्चर पे मैं यही स्टोरी लिखूंगा करके जाना चाहते हो? no, ma'am. Actually, I have written them by getting information from web, I made will them. just check maximum one more picture. I will not check a lot of pictures. I'll send it to you on WhatsApp, ma'am. You can send one, not more, Aryan. Sure, ma'am. Sure. Yeah, Aryan, all the best. Bye. And ma'am, one more thing. Just wanted to ask in SRT, like if there is a tire puncture kind of scenario in the middle of forest or any kind of unwanted activity, then hero is not the uh, he's not oriented in all those skills and all. He doesn't have that skill. So what is the basic thing that he should do? Wait for the आर्यन, देखो सिनेरियो क्या है, वर यू पासिंग थ्रू द जंगल और वर यू गोइंग टू सम डेस्टिनेशन, एंड फॉर व्हाट वर यू गोइंग। नॉर्मल चीजों के लिए वी आर नॉट गोइंग अलोन, अगर सिर्फ पास कर रहे हैं तो यू कुड बी अलोन, तुम्हारे साथ आइडियली एक पर्सन और होता है। रात का टाइम है तो व्हीकल छोड़कर भी तुम बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो, या कोई भी और XYZ चीजें यूज कर सकते हो, उधर रुकने वुकने का डिसाइड करते हो तो व्हीकल को ड्रैग करके भी लाकर रिपेयर भी करा सकते हो आर्यन। किसी को रिपेयर करना आता है तो वो खुद से भी कर कर लिख सकते हैं आर्यन। तो थिंग्स आर वेरी मच इंडिपेंडेंट फॉर पीपल, द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू डू द एक्शंस, यू हैव टू डील विद द सिनेरियोज, but different people with different capabilities, different exposure, different knowledge will do different things आर्यन। तो इसीलिए आई हैव बीन टेलिंग यू कि कोई रूल मत याद करके जाओ, जितना फ्री माइंड के साथ जाओगे आर्यन उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर यू विल गो ऑन प्रिपेयरिंग कि जंगल आए तो यही लिखना है, चोर आए तो यही लिखना है, देन आर्यन यू विल नॉट डू जस्टिस टू योरसेल्फ। yes, ma'am. I mean the initial I'm three having four another attempts. session, so you send Ma'am, me your actually, the problem with me was that in the initial, I went unprepared, putting into the words whatever the first thought came into my mind, but it didn't work. नहीं So आर्यन, I started अनप्रिपेयर्ड thinking, होने में और फ्री होने में अंतर होता है, ठीक है। What I'm asking you is that you deal with the situations, you be responsible, you be productive, लेकिन freely लिखो। I am not telling you कि जो माइंड में आए वो लिख दो,
I am asking you, Aryan, show the important things, be productive, be responsible. You write it in that manner, Aryan. ये नहीं कि माउंटेन का पिक्चर है तो मैम मेरे थॉट में आ रहा है कि तितली है, चिड़िया है, मैंने चिड़िया देखी, लोगों के साथ बैठकर खाना खाया, ड्रिंक किया, भूत की कहानियां सुनी, ये नहीं लिखने को आई एम आस्किंग यू, आर्यन. आई एम आस्किंग यू पिक्चर्स को देखो और सोचो मैं क्या प्रोडक्टिव काम करूंगा इन अ फ्री मैनर. ठीक है. मैम आप Now, जैसे बोल रहे हो हर पिक्चर में वर्क वगैरह करवाओ, तो देयर वाज वन पिक्चर इन द स्टोरी, इन द वीडियो, दैट टू पीपल आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ शेड ऑफ अ ट्री, तो उसमें काम क्या हो? प्रोडक्टिव, रिस्पॉन्सिबल या मीटिंग योर फ्रेंड्स आफ्टर सम टाइम. तो थर्ड वाला थीम भी चलता है रियूनियन वगैरह का, जस्ट स्पेंडिंग गुड टाइम, गोइंग टू योर हाउस. मैम कैन यू रिपीट इट, व्हाट ऑल थ्री डिड यू से? बी प्रोडक्टिव, बी रिस्पॉन्सिबल. कभी कभी फैमिली फ्रेंड्स का पिक्चर आए तो गुड बॉन्डिंग वगैरह की भी स्टोरी लिख सकते हो, जहाँ तुम अपने फ्रेंड के से मिले, विलेजर्स से मिले, सबसे मिले, खुश हुए, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, फिर वापस आ गए छुट्टी में. तो तुम्हारा गोल क्या हो गया, आर्यन, कि प्रोडक्टिवली कॉलेज, कॉर्पोरेट, ये सब में काम कर कर जाकर अच्छे से सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और वापस आ रहे हो. ठीक है. नाउ आई हैव टू गो. वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, यू सेंड इट टू मी इन मैसेज. श्योर और मैम. अपने दिमाग में ये बहुत सारी चीजें भरना बंद करो. बी प्रोडक्टिव, बी रिस्पॉन्सिबल एंड राइट थिंग्स फ्रीली, आर्यन. ऑल द बेस्ट.